بہت پرانی بات ہے کہ بغداد شہر میں ایک اندھا اور ایک کبرا بھیک مانگا کرتا تھا۔ یہ ایک روز دونوں ایک بھیک مانگنے کے لیے اپنے اپنے گھر سے نکلے اور ان کی ملاقات ایک چڑھاوے پر ہوئی۔ اندھے نے صدا لگاتے ہوئے کہا کہ خدا کے لیے اس اندھے کی مدد کرتے جاؤ، خدا کے لیے اس اندھے کو کچھ نہ کچھ دیتے جاؤ۔ ادھر سے کبرے نے بھی ساتھ اس کے صدا لگائی کہ اندھے کے ساتھ ساتھ اس کبرے کو پر بھی مہربانی کرتے جاؤ۔ تو اندھے شخص نے بولا کہ اے بھائی، تو کون ہے اور کیوں میری روزی روٹی پہ لات مارنے کے لیے آ گئے ہو؟ میں یہاں سالوں سے بھیک مانگ رہا ہوں، جاؤ بھائی کہیں اور جا کر بھیک مانگو۔ کبرے نے بولا کہ اے بھائی، کیا کہا؟ اللہ پاک نے ساری دنیا سب کے لیے برابر بنائی ہے، جو مجھے ملا وہ میرا نصیب اور جو تمہیں ملے گا وہ تمہارا نصیب ہے۔ کبرے کی بات بڑی معقول لگی اور اندھے نے کبرے سے پوچھا کہ کیا تم پیدائشی کبرے ہو یا کسی حادثے نے تمہیں کوئی کبرا بنا دیا ہے؟ پیدائشی کبرا بولا، لیکن اس نے دل میں سوچا کہ اس اندھے پر رعب ڈالنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ سچ مجھے یہاں سے بھگا دے۔ اس نے ذہن میں ایک کہانی گھڑی اور اسے کہا کہ اے بھائی اندھے، میری کہانی ہے تو بڑی دردناک، پھر بھی میں تمہیں اپنی کہانی سناتا ہوں۔ میں پیدائشی کبرا نہیں ہوں، میری پیدائش ایک غریب گھرانے میں ہوئی ہے۔ ایک دن میری پیدائش ہوئی، اسی دن کسی بزرگ نے میرے باپ سے کہا، یہ بچہ جو تمہارے گھر پیدا ہوا ہے اس کا خیال رکھنا اور اس کی خوب خدمت کرنا، یہ بچہ تمہارے لیے بہت برکت لائے گا۔ تو اس کی برکت سے دولت کی تمہارے آگے پیچھے پیغام ملا، جس میں میرے باپ کو ایک بہت بڑی مالیت کے سامان کے بنانے کی پیشکش کی گئی۔ اس میں بغداد فوج کا سارا سامان، جنگی سازوسامان بنانے کا حکم دیا گیا۔ مزدور اور خام لوہا بھی میرے باپ کو اس تاجر نے مہیا کرنے کا وعدہ کیا۔ میرے باپ کا سوائے اس کے کوئی کام نہیں تھا کہ مال بن جانے کے بعد وہ اپنی نگرانی میں خود اس تاجر تک پہنچاتا تھا کہ میرے باپ نے کام کرنا شروع کیا۔ ان دن گزرتے گئے اور دولت کے جیسے بارش ہونے لگی۔ ہمارا شمار اب بغداد کے چند امیر خاندانوں میں ہوتا تھا۔ میرا باپ اب ہر طرح سے میرا خیال رکھتا تھا، اسے لگتا تھا کہ یہ سب دولت میری ہی برکت کی بدولت ہے، لہٰذا وہ مجھے گھر سے باہر نہ نکلنے دیتا۔ کچھ ہی عرصے میں میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد تو میرے باپ نے میرا اور بھی خیال رکھنا شروع کر دیا۔ ایک روز جب میرا باپ سارا سامان تیار کروا کر وہ تاجر کا مہیا کرنے کے لیے نکلنے لگا تو میں نے ضد پکڑ لی کہ میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ میرے حد اصرار کرنے کے بعد میرا باپ راضی ہو گیا۔ چند ایک سپاہی کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ راستے میں کچھ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ ہم بڑی بہادری کے ساتھ ڈاکوؤں سے لڑے، مگر ڈاکوؤں کی تعداد بہت زیادہ تھی، لہٰذا ہمیں ان سے شکست ہوگی۔ میرے باپ کا اس لڑائی میں انتقال ہو گیا، لہٰذا میں وہاں سے بے ہوش پڑا۔ ڈاکوؤں نے مجھے مردہ سمجھ کر وہیں چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا فقیر بیٹھا ہوا ہے۔ میرے ہوش میں آنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میری جان بھی اس بوڑھے فقیر نے بچائی ہے۔ کچھ ہی دنوں میں میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، مگر اس چلنے پھرنے میں ایک نمایاں تبدیلی تھی، جس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میں کبرا بن گیا ہوں اور پھر میں اس بوڑھے آدمی کے ساتھ مانگنے چلا جاتا۔ شروع میں تو بہت شرم محسوس ہوئی اور آہستہ آہستہ وہ شرم بھی جاتی رہی۔ بزرگ نے شاید ایک ہی کہا تھا کہ جب تک میں تندرست رہوں گا دولت مند رہوں گا، مگر حالات نے ایسا پلٹا ہے کہ میں امیر سے فقیر ہو گیا، جس میں اسے فقیر کے ساتھ اس کے جھونپڑی میں رہنے لگا، سارا دن اس کے ساتھ بھیک مانگتا، مجھے بھیک مانگنے کے نئے طریقے سکھائے۔ کچھ عرصے بعد وہ فقیر بھی چل بسا اور اب میں تھا اور میری فقیری تھی۔ ڈاکوؤں نے مجھ سے میرا باپ اور میری قسمت دونوں کو مجھ سے چھین لیا۔ کبرا اپنی جھوٹی کہانی سنا کر زور و قطار رونے لگا۔ اندھے نے اس کا کندھا تھپ تھپا کر اسے حوصلہ دیا۔ اس کے بعد کبرے نے اندھے سے کہا کہ بھائی، میں نے تو اپنی اب بیتی سنا دی، اب تم سنا، تم پیدائشی اندھے ہو یا تمہیں بھی کسی حادثے نے اندھا بنا دیا ہے؟ اندھا تھا تو پیدائشی، لیکن اس نے سوچا کہ اگر میں بتا دیا کہ میں پیدائشی اندھا ہوں تو شروع سے ہی بھوکا ننگا ہوں تو شاید یہ مجھے دبا لے، اسے کوئی ایسی کہانی سنانی پڑے گی کہ یہ میرے نیچے دب کے رہے۔ اس نے جھٹ سے کہا کہ نہیں، میں پیدائشی اندھا نہیں ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر اپنا منہ تھوڑا سا افسردہ کر لیا۔ کوئی بوڑھے نے کہا کہ بھائی، کیا ہوا تمہارے ساتھ، مجھے بتاؤ، شاید میں تمہارا
दुख बांध सकूं। तो इसने जड़ से कहा बांध सकूं। तुम इसरार करते हो तो चलो मैं तुम्हें अपनी कहानी सुना देता हूँ। दरअसल मैं एक अमीर ताजर का बेटा था। मेरी माँ मेरे बचपन में ही इंतकाल कर गई। मेरे बाप के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। मेरा बाप बगदाद का शायद सबसे बड़ा ताजर था और ना अमीर के खलीफा मेरे बाप के पास आते जाते रहते। बड़े बड़े लोग मेरे बाप के लिए सामान लाते। जो भी ताजर मेरे बाप के साथ काम करता, ताजर ये ख्वाहिश होती थी कि वो मेरे बाप के साथ काम करे, लेकिन मेरा बाप सिर्फ गरीब ताजरों की ही किस्मत में डालता था। इसी बात से दूसरे बड़े ताजर मेरे बाप से हसद करते थे। अपने बाप के साथ तजारत में महारत हासिल करने लगा, क्योंकि मेरा बाप अमीर ताजरों को छोड़कर गरीब ताजरों से अपना सामान तैयार करवाता था। एक दिन मेरे बाप ने मुझसे कहा कि बेटा, मैं काफ़ी अरसे से एक ताजर पर अपना सामान बनवा रहा हूँ। वो ताजर बड़ा ही भूखा नंगा था, लेकिन आजकल वो बड़ा अमीर हो गया है। तो मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि आज से तुम भी मेरे साथ इस ताजर से सामान वसूल किया करोगे। जानता हूँ कि तुम बहुत काबिल हो, इस काम को अच्छे से संभाल लोगे। मैंने ताजर को भी मशवरा दिया था कि पर लगाओ, मगर वो ना माना। इसने कहा कि मेरा बेटा घर में ही खुश है, शायद इसका बेटा इंतहाई कामचोर था। ये कहकर मेरा बाप खामोश हो गया। मैंने अपने बाप से पूछा कि अब्बा हुजूर, तजारत कौन से सामान की है? तो मेरे बाप ने बताया कि जंगी सामान की है और ताजर एक लोहार है। अंधा ये कहता हुआ एक बेईमान सी हंसी हंसा और बेचते हुए बोला, अच्छा आगे क्या हुआ? अगले दिन मेरे बाप ने मुझसे कहा कि बेटा, तैयारी करो, हम लोहार से सामान लेने जा रहे हैं। हमने अशर्फियों का थैला उठाया और घोड़ों में सवार होकर निकल पड़े। जब हम सामान वसूल करने वाली जगह पर पहुंचे तो हमने देखा कि लोहार के काफिले पर हमला हुआ है। सारा सामान बिखरा हुआ था। जिनमें से कुछ ताजर 20 से 25 लोग जो मेरे बाप से असर करते थे, तलवार उठाए हम पर हमला किया और उन्होंने मेरे बाप को कत्ल कर दिया और मुझे मुर्दा समझकर वहां छोड़कर चले गए। जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि मैं अंधा हो चुका हूँ। तब से लेकर अब तक मैं भीख मांग रहा हूँ। मेरे ख्याल से जिस लोहार से मेरे बाप ने तजारत की थी वो तुम्हारा बाप था, मगर इस दिन हमारी मुलाकात हो जाती तो अमीरों की तरह मिलते। किस्मत ने हमें कहां से कहां लाकर मिलाया है। एक अंधा है और एक कुबड़ा। कुबड़े ने अंधे की कहानी सुनकर दिल ही दिल में सोचा, ये अंधा तो बड़ा ही चालाक निकला। जब मेरे बाप का कोई कारोबार ही नहीं था तो तेरा बाप कैसे मेरे बाप से कारोबार करने लगा? ये सोचते हुए कुबड़े ने अंधे से कहा, भाई अंधे, अगर हालात ने हमें मिला ही दिया तो क्यों ना अब हम मिलकर इस हालात का मुकाबला करें। अंधे ने जवाब दिया कि ठीक है, आज से हम दोस्त हैं और हम मिलजुल कर अपने दुश्मनों से बदला लेंगे। इसी दिन से दोनों ही मिलकर इसी जगह पर भीख मांगने लगे और जो पैसे मिलते वो आपस में बांट लेते। लोगों ने देखा कि पहले इस चौराहे पर एक फकीर हुआ करता था और अब 2 हो गए हैं, कल को शायद 3 हो जाएंगे। और फिर बेशुमार चनाचा देने वालों ने भीख बहुत कम कर दी। ये जिम्मेदारी होती कि जो भी भीख मिलती वो इसे बराबर तकसीम करके अंधे को दे देता और आधी अपने पास रख लेता। एक दिन वो पैसे दोनों आपस में बांट रहे थे कि कुबड़े ने पैसे बराबर गिनकर अंधे के अपने पास रखे और आधे अंधे के कटोरे में डाल दिए। मगर कुबड़े ने गौर से देखा तो महसूस किया कि अंधे के पास शायद कम पैसे हैं। कुबड़े ने 2-4 सिक्के मजीद अंधे के कटोरे में डाल दिए। जब झटकारा अंधे के कानों में पड़ी तो इसने सोचा कि जब सारे पैसे तकसीम हो गए तो ये सिक्कों की झटकार कैसी है? जरूर कुबड़ा बड़ा कोई बेईमानी कर रहा है। इसने गुस्से से चिल्लाया और कुबड़े से कहा कि तू मेरे पैसे चुरा रहा है। इतना कहकर इसने अपनी लाठी उठाई और ज़बरदस्त तरीके से कुबड़े के कमर में मारी। अब ये देखकर कुबड़े को भी गुस्सा आ गया और अब कुबड़े ने मुट्ठी भर रेत उठाई और ज़ोर से अंधे की आंखों में दे मारी। जैसे ही अंधे की आंखों में रेत गई तो वो चिल्ला उठा, मगर वो दूसरे ही लम्हे इसके देख कर कहने लगा कि अरे यार, मुझे नज़र आ रहा है। इधर से कुबड़ा भी बोल उठा, मेरी कमर सीधी हो गई है। और दोनों हमारे खुशी के एक दूसरे से लिपट गए और भंगड़ा डालने लगे। यार मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुझे गलत समझा था। अब कुबड़ा नहीं रहा था और अंधा नहीं रहा था, मगर इस कहानी में हम इसे कुबड़ा और अंधा ही कहेंगे। इनके सामने अब ये ठीक हो चुके थे। ऐसी सूरत में भीख मांगना मुश्किल था। कुबड़े ने अंधे से कहा, अब तुम ही कुछ सोचो, कोई ऐसा काम कि जिसमें काम ना करना पड़े और पैसे भी बेशुमार हो।
अचानक अंधे के दिमाग में एक तरकीब आई और इसने कहा कि हम हकीम बनकर लोगों का इलाज किया करेंगे। कुबड़ा बोला कि वो कैसे, मुझे तो हिकमत के अलिफ बे तक नहीं आती। अंधा बोला कि भाई, हमारे दोनों के हाथों में शिफा है, क्या तुमने मेरी आंखें ठीक नहीं की और मैंने तुम्हारी कमर नहीं ठीक किया? अरे यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि कुबड़े और अंधे का इलाज ऐसे भी हो जाता है। चलो किसी करीबी बस्ती में चलते हैं, तुम अंधों का इलाज करना और मैं कुबड़ों का। अंधे ने अपनी लाठी उठाई और कुबड़े ने कुछ रेत अपने थैले में डाली और सफ़र पर निकल पड़े। कुछ ही देर में वो एक बस्ती में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने लोगों को बताया कि वो पिछले 20 साल से हकीम है और अंधों और कुबड़ों का इलाज करते हैं। देखते ही देखते पूरी बस्ती में खबर फैल गई। कई कई अंधे और कुबड़े इनके पास इलाज करवाने के लिए पहुंच गए। हर कोई चाहता था कि पहले इसका इलाज किया जाए। चनाचा इसने एक कुबड़े ने एक अंधे को अपने पास बुला लिया और बोले कि सबसे पहले इनका इलाज होगा, मगर हम वादा करते हैं जैसे ही कुबड़े और अपनी आंखें खोलेंगे हम अपने। कुबड़े ने अंधे की आंखों में मुट्ठी भर रेत डाल दी और अंधे ने कुबड़े के कमर पर जोरदार लाठी मारी और वो दोनों वहीं ही जमीन पर गिरे और मर गए। बस्ती वालों ने जब ये तमाशा देखा तो इन दोनों की धुलाई शुरू कर दी। बस्ती के एक रहमदिल आदमी ने लोगों से कहा, जान से मत मारो, बल्कि इन्हें ये सजा दो कि मरने वालों की दोनों की कब्रें इनसे खुदवाओ। चनाचा दोनों ने कुबड़े और अंधे ने उनकी कब्रें खोदी और वहां से निकल गए। वहां से भागते भागते कुबड़े ने अंधे से पूछा, यार मरीज इलाज के दौरान मर क्यों गए? फिर अंधे ने कहा कि शायद मेरा डंडा इसकी कमर पर नहीं लगा था और तुम्हारी रेत इसकी आंखों की बजाय इसकी नाक में चली गई थी। कुबड़े ने कहा, अब क्या करें? तो अंधे ने कहा, अब अगली बस्ती में अपनी किस्मत आजमाते हैं, मगर ख्याल रखना इस बार इलाज ध्यान से करवाना। चलते चलते अगली बस्ती में पहुंच गए। एक बार फिर मरीज इनके आगे पीछे हो गए और दोबारा कुबड़े ने एक अंधे को अपने पास बुलाया और अंधे ने इलाज के लिए एक कुबड़े को अपने पास बुलाया। अंधे और कुबड़े ने कहा कि भाई बहनों, इसमें कोई शक नहीं कि हम पुराने हकीम हैं, मगर इलाज के दौरान मरीज डंडा लगने या आंखों में रेत जाने की वजह से मर गए तो कब्र खोदने की जिम्मेदारी हमारी ना होगी, कब्र तुम खुद खोदना। ये सुनना था कि बस्ती वालों ने इनकी दरगत करना शुरू कर दी। एक बार फिर किसी नेक बुजुर्ग बस्ती वालों को रोका और कहा, बस करो। फिर नेक बुजुर्ग ने अंधे और कुबड़े से कहा कि जानता हूँ कि तुम हकीम नहीं हो, फिर क्यों अपनी और लोगों की जान के दुश्मन हो गए हो? दोनों ने अपनी कहानी नेक बुजुर्ग को बयान कर दी। दोनों की बात सुनकर बुजुर्ग ने कहा, खुदा ने तुम्हें सेहत दी है, तुम दोनों को मेहनत करके रोजी कमानी चाहिए। जिस खुदा ने तुम्हें सेहत दी है वो वापस भी ले सकता है। इससे पहले कि नाशुक्री में मजीद तुम नुकसान उठा लो, इससे पहले समझ जाओ और नेक नीति से रोजी कमाओ। अंधा और कुबड़ा बड़ा बुजुर्ग की बात सुनकर रोने लगे और बुजुर्ग के कदमों में गिर गए और वादा किया कि आइंदा मेहनत करके अपना पेट